Yes, Richa, Ruben and Sakshi, just give me 5 minutes. Actually, I have to place one form for secure meters. So after 5 minutes, I will be starting the class. Na? Meanwhile, you inform other students to join in. Na?
Do we have some process going on right now for any of the companies? Yes, sir. Sir, actually, there is people strong test going on. So you are also involved, you 4 people are also giving that test? No, sir. Okay, fine. So just give me 5 minutes. Actually, on urgent basis, I have to create that form. ना वो skip हो गया मेरे से secure meters वाला. मैं 5 बस 2 मिनट दो, हम स्टार्ट करते हैं क्लास. बस एक बार शेयर कर दूंगा कि वो 12-15 इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है. चलो, जस्ट 2 मिनट दो मेरे को, मैं स्टार्ट करता हूँ.
I think our placement drive for this secure meters has also started. Is it so? Rashika? Yes, sir. So will you all be able to attend the class right now? Because the links have come. Oh, right, sir. I'll just check. Uh, just check and let me know. In this case, I will record the meeting. You can skip the meeting for the time being. I will record the class for 2 days and I will upload the lecture. है ना? Okay, sir. है ना? Because just check. I have not checked. I have just checked the mail from Subhash Handa sir. So I think the links have come and it's 11 a.m. already. Okay, sir. So in that case, we'll watch the recorded lecture, sir, because most of the people might be there. I guess these are not the this is the Google Forms with respect to the this. I think they have created some confusion. अब मैंने वो टेस्ट लिंक बना के डाला था and so it is one. I don't know what they have done. I have shared it with this. No issues. Okay, let's continue with the class for those who are not there. And actually, they have spoiled the class today. हेलो हाँ अरे सर ये ना इन्होंने क्या भेजा है ये इसका सिक्योर मीटर्स का सुभाष आंडा सर ने ये ना कुछ लिंक आए गूगल फॉर्म लिंक्स
Okay, sorry for today. If the students are giving the test, they can continue over there. I again repeat, they can leave the meeting for the time being. I will share this lecture with you all, or it will be automatically shared with you all, है ना? And so no issues in that. Okay, let's come back to the what we were discussing the last. So let's complete this. On the next class. We will continue the next unit, that is the link prediction and friend recommendation system. In the next week also we will continue, and I will try continue the classes, because the thing is our syllabus is lagging a bit, so your drives will be there. So if there is a drive, you can you have to appear over there only, and you can access the lecture recordings. Okay, but in case if you are not, because we will be getting the attendance from the placement side, that which all students have appeared, and be careful about that, that don't bluff, don't try to bluff. Okay, that in the name of placement test you are not appearing over there also, and here also. So please do appear into the classes, but in case that placement drive is there, then no issues, that is the priority, so you have to be over there only. And the lecture recordings you can access. So I will keep taking the lectures Monday to Friday, because the syllabus is lagging a bit behind. So है ना? And if required, one more lecture either in Saturday or Sunday, if required. Okay, so in the last lecture we were discussing about this betweenness centrality. So betweenness centrality is basically the idea that the node which through a particular node through which a lot many paths are passing through, will be having the highest importance or the centrality score. Okay, so for that purpose we saw this case study, that let's say we have this kind of a graph, and we want to find the number of paths passing through A. So we kept the A at the root node and tried to explore the network in the manner. So we come up with the final number of paths like this. That there are to reach from A to B to C to D and to E, there are one path of one path length. So all the nodes can be accessed from A. Yeah, A can reach to all these nodes in one path length, and there is only one way to reach over there. Okay. Now F to F I can reach in two path length, and there are two ways to reach over there. Okay. And we will take up the shortest path length. We will take up the shortest path, because one path that could be possible is A, B, G to F. So, but the path length has increased to 3. The path length has increased to 3. One more is A, B to F, A to B and B to F. This is of path length 2, and this could be the minimum path length. Okay. So we will consider that. So path length 2 के मेरे पास दो path हैं. ठीक है. So this 2 number is representing that the shortest paths, the number of shortest paths available to reach to F from A to F are 2. Okay. Now from A to G, I can reach in 2 path length, but there is only one path available. The rest of the paths, in fact, the rest of the paths are, if I take this route, let's say A to D, D to H, H to J, and J to G, then in that case also the path length will be high. So there is only one path of shortest path length, that is from A to G. Okay. Now for H, A to H, I can reach in 2 path length, and there are 2 paths available, A to D, D to H, and A to E, E to H. Okay, so 2 paths are available over here. Okay. Now similarly for I, there are 2 paths available, in fact 3 paths available of path length 3, and no lesser than path length 3, the paths are available from A to I, that is A as a source node and I to destination node. So one of the paths that can be possible is A to B, B to F, and F to I. Another path possible is A to G, G to F, and F to I. And another path possible is A to D, D to G, and G to I. So 3 paths of 3 path lengths. Similarly for J, I have 3 paths. And to reach to K, so this can be resolved further as, इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि अब मुझे बाकी का नेटवर्क देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक का पाथ 1 है,
ठीक है, जैसे मैं f की बात करूं, यहां तक का पाथ लेंथ 1 है, मतलब यहाँ पाथ 1 अवेलेबल है, तो पाथ लेंथ 1 प्लस पाथ लेंथ 1 तो 2 पाथ लेंथ हो गई, ठीक है, g से f तक, एंड पाथ लेंथ 1 b तक है और b से f कितना है, एक पाथ में पहुंच सकते हैं, तो अगेन 2, तो देयर आर 2 रूट्स अवेलेबल, तो मुझे पूरा पाथ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब f आ गए, f पे 2 paths are available of path length 3 and 1 paths are available, so from here we can have 3 paths, so यहाँ पे हम इन दोनों को सम अप करके 3 paths बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ जैसे अगर मैं करूँ तो मैं एक एक अब गिनने काउंट नहीं करने बैठूंगा, मेरे पास i से j तक के नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल है, 3 यहाँ तक है, 3 यहाँ तक है, और एक एक पाथ यहाँ से है, तो 6 paths of path length 1 2 3 and 4 path length are available, 6 paths of 4 path length are available, है ना। कौन कौन से हो सकते हैं, एक ये वाला, ठीक है, a to b b to f f to i i to k, एक हो सकता है a to b b to g g to f f to i i to k, एक हो सकता है a to d d to g g to i i to k, एक ऐसे करके 6 paths are possible, ठीक है। so this is the number of paths, shortest paths possible from node a to any node, ठीक है। नोड क्या है, ए क्या है, सोर्स नोड है, इसी का ही हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट कैन बी द सेंट्रलिटी वैल्यू ऑफ दिस बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स टू अदर नोड्स इन द ग्राफ, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी कैन represent the flow as 1 1 1 at b to c, 2 1 2 and 3 3 and 6, this is the number of flows that are available, ठीक है। हम इसको रिवर्स बैक ट्रैक करते हैं, ठीक है, कंप्यूट द बिटवीननेस, तो रिवर्स बैक ट्रैक करते हैं, तो ये 6 स्कोर है और इसके 2 पार्ट्स हैं, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है, तभी ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 इधर है, 3 इधर है, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। नो तो ओके, नाउ अगर इस पे देखा जाए तो इससे 2 स्कोर आ रहा है और इससे 1 स्कोर आ रहा है, ठीक है, इससे 2 स्कोर आ रहा है और इससे 1 स्कोर आ रहा है, तो इट मींस द स्प्लिट इज समवेयर लाइक 1:2.5, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, 1:2.5। तो इसका अगर अपन रेशियो निकालेंगे तो 1/3 आएगा इसका कंट्रीब्यूशन और इधर आएगा 2/3 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो और एक इसका खुद का, ठीक है, एक इसका खुद का, तो ये 2:1 में स्प्लिट हुआ, ठीक है। देन कमिंग टू दिस, तो ये इस पे 2 ही नोड्स आ रही हैं और दोनों का कंट्रीब्यूशन 1 1 है, तो 1 इधर 1 इधर, नोड फ्लोज ऐसे निकल गए, 1 इधर 1 इधर, ठीक है। इसकी बात करें, है ना, यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ से 1 फ्लो आ रहा था एंड टोटल 2 है, ठीक है। तो या 1 इधर से आ रहा है और इधर है, तो 2 फ्लो इस पे गया तो 1 इस पे आ गया, ठीक है। एंड फाइनली आई हैव 4 ओवर हेयर एंड 2 ओवर हेयर, इससे 4 पाथ्स निकल रहे हैं, ठीक है, इससे 4 पाथ्स पॉसिबल है ना, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना। तो इनफैक्ट 4 पाथ्स ऐसे हैं कि A to G पहुंचने का एक रास्ता हो गया, A to H पहुंचने का एक रास्ता हो गया, A to I पहुंचने का हो गया, एक A to J पहुंचने का हो गया और एक A to K पहुंचने का हो गया, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दिस आई कैन कैलकुलेट द सेंट्रलिटी ऑफ दिस एज 4, सो दीज आर द फाइनल, और इनको जब सम अप करेंगे तो वो A का सेंट्रलिटी स्कोर आ जाएगा 2242, ठीक है। हैव यू गॉट दिस, ये चीज समझ में आया, ठीक है, फाइन। सो scrolling up, हाँ, now what about nodes, can we use edge betweenness centrality to calculate node betweenness centrality? So far we have counted the number of shortest paths from a sigma ai from node A to all other nodes I of the network. Similarly, we count the number of shortest paths sigma yz from every node y to all other nodes z in the network, ठीक है। तो अभी तक तो हमने क्या देखा, और बिटवीननेस सेंट्रलिटी फिर क्या होगी कि भाई जैसा हमने फॉर्मूला देखा था, ये इसका फॉर्मूला है, जैसे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स 2x, ठीक है, इंक्लूडिंग yz, ठीक है, गोइंग फ्रॉम y to z, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स x किसी नोड के थ्रू, x नोड के थ्रू बिटवीन y to z, ठीक है, और उसमें नोड x बीच में आना चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय
the number of shortest paths between y to z. The number of shortest paths between y to z. This defines the centrality score of a particular node. ठीक है, जैसे A से C जाने के बहुत सारे शॉर्टेस्ट पास हो सकते हैं, एंड तो वो तो हो गया मेरा डिनोमिनेटर. A to C जाने के बीच में बहुत सारे शॉर्टेस्ट पास हो सकते हैं, वो हो गया मेरा डिनोमिनेटर. उनमें से वो वाले पास जिनमें X नोड आ रही हो या B नोड आ रही हो, लेट्स से B नोड आ रही हो, तो वो मेरा बन गया न्यूमरेटर पार्ट. ठीक है, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल. ठीक है, अब इसमें जैसे मुझे सेंट्रलिटी स्कोर कैलकुलेट करना है ए का. ठीक है, सो ए का सेंट्रलिटी स्कोर विल बी 0 बिकॉज इट इज नॉट सेंट्रल. मतलब ये किसी के भी, अगर मुझे बी से सी जाना है तो ए का कोई रोल नहीं है, बी से डी जाना है तो ए का कोई रोल नहीं है, और बी से ई जाना है तो ए का कोई रोल नहीं है. एंड सिमिलरली ई के लिए भी द सेंट्रलिटी स्कोर 0 है. सो ऑल द नोड्स एट द पेरिफेरल हैड द बिटवीन सेंट्रलिटी स्कोर 0. All the nodes on the peripheral of a network has a centrality between a centrality score 0. ठीक है, now B का स्कोर 3 कैसे आया? A से C जाने के लिए एक पाथ अवेलेबल है B के थ्रू, A से D जाने के लिए और A से E जाने के लिए. So the centrality score of B will be 3. ठीक है, A to C one path, A to D one path, and A to E another path. So between the centrality score of B is 3. Similarly, इस नोड का सेंट्रलिटी स्कोर तो A से D जाने के लिए वन पाथ, मतलब A से D जाने के लिए एक पाथ में आ रहा है C, A से E जाने के लिए एक पाथ में आ रहा है C, देन तो 2 हो गए. B से D, B से E अगेन 2. ठीक है, तो 4 हो गए. 4 पाथ्स में आ रहा है C बीच में. Wait, कौन कौन से 4 पाथ्स? A to D and A to E and B to D and B to A. तो centrality score of C becomes 4. ठीक है, similarly the centrality score of D. ठीक है, तो एक तो हो गया A to E. ठीक है, एक हो गया B to E और एक हो गया C to E. तो अगेन its centrality score is 3. ठीक है, तो और E का हम कह ही चुके हैं कि जो पेरिफेरल पे है तो वो तो किसी के बीच में आ ही नहीं रहा है, तो सेंट्रलिटी स्कोर 0 हो जाएगा. तो मोस्ट सेंट्रल नोड और द नोड विच हैज द मोस्ट बिटवीननेस सेंट्रलिटी विल बी द C नोड. ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा सेंट्रलिटी है वो C नोड. फाइन. सिमिलरली अगर स्टार ग्राफ की बात करें तो स्टार ग्राफ में जैसा पहला ये है, तो जो मैंने जैसा आपको बताया था कि जो नोड्स पेरिफेरल पे हैं उन सबका सेंट्रलिटी स्कोर क्या हो गया? 0. ये वाला नोड है, ये 8 पाथ्स में इन्वॉल्व है. कौन कौन से 8 पाथ्स में? वो कैलकुलेट कर लेना. यहाँ से इन दोनों के बीच में दूसरा ये हो गया, तीसरा ये पाथ हो गया. ठीक है, डोंट वी हैव लेजर इन दिस? अनदर इज दिस पर्टिकुलर. ठीक है, जैसे ये यहाँ से यहाँ अपन मूव कर रहे हैं तो अनदर पाथ इन विच दिस इज कमिंग. फिर सिमिलरली यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो अनदर पाथ. ठीक है, और तो हो गए शायद मेरे हिसाब से 8 पाथ हो गए. अच्छा नहीं, ये तो इसी के पाथ हुए. 9 इतने ही पाथ इसके हैं. तो बेस्ड अपॉन दिस आई हैव 8 paths passing through this. ठीक है, similarly I have 9 paths passing through this and 8 paths again passing through this. तो the most central node और the bridge node जिसको हम बोल सकते हैं वो ये है. ठीक है, similarly we can compute for this. ठीक है, so it's a very simple notion but very effective. ठीक है, इसका एक बहुत मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो आप लोग ने जैसे बहुत सारे जनों ने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पढ़ी हुई है, तो इन दिस वी हैव ग्राफ कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स. ठीक है, इट्स वन ऑफ माय रिसर्च वर्क्स. ठीक है, वन ऑफ माय रीसेंट रिसर्च वर्क्स, मतलब ये पब्लिश भी नहीं हुआ है जस्ट. तो ग्राफ कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स में हम क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग नोड्स हैं उनको रैंडमली पिक करते हैं. ठीक है, ट्रेनिंग नोड्स को हम रैंडमली पिक करते हैं एंड उसके थ्रू हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, ट्राई टू क्लासीफाई द लेबल ऑफ द नोड. जैसे सपोज करो एक कोई नेटवर्क है जिसमें मुझे क्लासीफाई करना है, वो डेटा है मेरे पास एक
ग्राफिकल फॉर्मेट में। ग्राफिकल फॉर्मेट मींस कि हर एक नोड है उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे इमेज के फीचर्स होते हैं तो उसके हर एक नोड के फीचर्स हैं। अब वो फीचर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उसका सेंट्रलिटी स्कोर भी हो सकता है, उसके कुछ जैसे एक वन ऑफ द डेटा सेट्स जो आप वो है वो को ऑथर साइटेशन नेटवर्क का डेटा है, तो उसमें हर एक नोड एक पेपर को रिप्रेजेंट कर रही है। एक पेपर को रिप्रेजेंट कर रही है और एक वो पेपर जो है वो एक वर्ड वेक्टर के फॉर्म में डिफाइंड है, ठीक है। लेट्स से उसमें 1433 कॉलम्स हैं हर एक पेपर, तो वो वर्ड प्रेजेंट अगर कुछ होगा, लेट्स से न्यूरल नेटवर्क इज द वर्ड प्रेजेंट इन दैट, या ट्रेनिंग मैकेनिज्म इज द वर्ड प्रेजेंट इन दैट, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट वो 0101 वर्ड वेक्टर में मार्क्ड है, एंड एट द एंड वी हैव द लेबल, ठीक है। दिस कॉम्पोजिशन यू नो हु वर्क्स इन मशीन लर्निंग एंड ऑल, तो ऐसा एक फीचर वेक्टर बना हुआ है हर नोड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हमें कुछ ट्रेनिंग नोड को सेलेक्ट करके ग्राफ कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क इज द फ्रेमवर्क डिफाइंड फॉर परफॉर्मिंग डीप लर्निंग मॉडल्स या फॉर एग्जीक्यूटिंग डीप लर्निंग मॉडल्स ओवर ग्राफ। तो उसके बेसिस पे हमें कुछ ट्रेनिंग सेट निकाल के और उसको ट्रेन करना है, और फिर टेस्ट सेट पे हमें ये देखना है कि वो सही लेवल प्रिडिक्ट होता है कि नहीं, इफ द फीचर्स आर गिवन एंड इट्स नेटवर्क इज गिवन, ठीक है। तो हमने जो तो GCN का जो प्रोसेस है वो रैंडमली ट्रेनिंग नोड पिक करता है, ठीक है। वहीं अगर आप ट्रेनिंग नोड्स को बिटवीननेस सेंट्रलिटी स्कोर के बेसिस पे अगर पिक करोगे तो यू विल गेट मच बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। उसकी जो ट्रेनिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, टेस्ट सेट जो टेस्ट क्या बोलते हैं अपन उसको, टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इवन विथ 20% ऑफ ट्रेनिंग डेटा, केवल 20% ट्रेनिंग डेटा के साथ में आप की जो एक्यूरेसी है वो 86-87 अराउंड आ जाएगी, ठीक है। 86-87% अराउंड उस डेटा पे 20% ट्रेनिंग डेटा के साथ आ जाएगी, ठीक है। सो इट्स वेरी इन्फ्लुएंशियल मेजर, ये बहुत अच्छा मेजर है नेटवर्क के इंपॉर्टेंट नोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसमें देखो कॉन्वोल्यूशन बेसिकली डिपेंड करता है आपके एग्रीगेशन पे। तो अगर आप ऐसी नोड्स को सेलेक्ट कर रहे हो जो एग्रीगेशन को बढ़ा रहा है, एग्रीगेशन मतलब रीचेबिलिटी बढ़ा रहा है नेटवर्क में, ठीक है। रीचेबिलिटी बढ़ा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा फीचर्स, तो ज्यादा फीचर अवेलेबिलिटी आएगी आपके पास में, ज्यादा फीचर्स रहेंगे क्या कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर परफॉर्म क्या कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो इसलिए ट्रेनिंग एफिशिएंसी बढ़ जा रही है। अब दिस इज सम सर्टेन एनालिसिस ऑन दिस, व्हाई डू C and D each have betweenness 1, ठीक है। नाउ they are both on shortest path for AE and A2E and B2E, ठीक है। एंड सो मस्ट शेयर क्रेडिट हाफ एंड हाफ, ठीक है। अब देखो A2E जाने के लिए भी एक रास्ता है, ठीक है, मतलब A2E जाने का एक रास्ता क्या है, थ्रू C, एंड A2E जाने के लिए दूसरा रास्ता है थ्रू D, ठीक है। एंड सिमिलरली क्या बोलते हैं, दोनों का पाथ लेंथ भी सेम ही है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ही है दोनों, तो दोनों का जो जैसे हमने उसमें फ्लो देखा था वो फ्लो बट जाएगा, हाफ एंड हाफ हो जाएगा, इट शुड बी हाफ एंड हाफ, ठीक है। सिमिलरली B से E जाने का भी C के थ्रू एक रास्ता है, एंड B से E जाने का रास्ता भी, ठीक है। तो वो भी एक हाफ हाफ होगा, तो दैट्स व्हाई दो जो टोटल शेयर बना वो क्या होगा 1, हाफ फ्रॉम A to E अगर हम C की बात करें, एंड हाफ फॉर B to E। सिमिलरली अगर हम D की बात करें तो हाफ फॉर A to E एंड हाफ फॉर B to E, ठीक है। Next question is, can you figure out why B has betweenness centrality 3.5 while E has betweenness centrality 0.5, ठीक है। तो सिंपल आंसर इज, पहले हम देखते हैं कि B कौन कौन से रास्ते में आ रहा है, तो क्या बोलते हैं A to C जाने के लिए एक ही शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है, वो B के थ्रू ही है, ठीक है। A to C जाने के लिए एक ही शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है, वो
बी के थ्रू ही है, तो बी का स्कोर 1 वहां हो गया, ठीक है। सिमिलरली ए टू डी जाने के लिए भी एक ही शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है और वो बी के थ्रू ही है, अगेन दिस विल बी 1, तो 2 स्कोर बी का हो गया, ठीक है। नाउ ए टू ई जाने के लिए आई हैव 1 shortest path available and since 2 वो उसकी वजह से हुआ and 1 जो है वो C की वजह से हो जाएगा and D की वजह से it will be I think ओके यहाँ थोड़ा सा हमें वो देखना पड़ेगा कि ये किस किस के, तो 1 उसकी वजह से है A to C जाने के लिए एंड 1 उसकी वजह से है, तो 2 तो वो ठीक है एंड A to E जाने के लिए नाउ 1 उसका कंट्रीब्यूशन था और 1 तो हाफ हाफ उसका होगा, तो 3 होना चाहिए एंड हाउ कम 0.5 इज कमिंग, सो this needs to be investigated a bit, क्योंकि इसमें हाफ इसकी तरफ से है फ्लो और हाफ उसकी तरफ से, सी और डी की तरफ से बी पे। In fact 1 1 2 and okay fine, so 2E there will be 1 path and 2D also there will be uh, uh, 1 path, but that path will be half contributed, so that's why this will be 3.5, ठीक है, okay fine. So these are certain measures like how the centrality scores and for different kinds of graphs work, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स, जैसे स्टार ग्राफ के लिए कौन सा नोड सेंट्रल होगा, एक लाइन ग्राफ के लिए कौन सा नोड सेंट्रल होगा, अगर आर्किटेक्चर इस तरीके का है तो विच सेंट्रलिटी प्लेस। तो जैसे लास्ट 2 ग्राफ्स में अगर आप देखो तो उसमें जो क्लोजनेस और बिटवीननेस सेंट्रलिटी है दैट इज पॉइंटिंग टू द सेम नोड, ठीक है, क्योंकि वहां दोनों के आइडियाज जो है वो सेम हो गए। These are certain examples, ये आप लोग चेक कर सकते हो and these are also some real life examples के वो उन्होंने कुछ particular networks पे काम किया और ये रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स आर डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफिकल स्ट्रक्चर, ये कौन सा सेंट्रलिटी स्ट्रक्चर डोमिनेंट रहा है, ठीक है। So this you can I think explore upon. So this ends up the mark. This marks the end of this centrality chapter. From the next class onwards, we will continue with link prediction and your friend's recommendation case study. So any doubts, any problems in this particular lecture, you can later on ask me or can ping me regarding that. Okay, fine. Thank you so much all.